Good morning and welcome in today's class. Today's video is continuation of our last class. In last class, we did about measures of central tendency, arithmetic mean. And the last topic which we took in our last class was types of arithmetic mean, where we discussed about simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. Let's see the first in today's class we people are going to discuss about the simple arithmetic mean. Let's see what is simple arithmetic mean. Simple arithmetic mean is that kind of mean which is calculated by using each and every item given in the series, and every item is given equal importance. So there are 2 points to remember about simple arithmetic mean is that each and every item in the series is used to find out the arithmetic mean, and every item has equal importance. Now, let's see what are the various methods to calculate simple arithmetic mean. Arithmetic mean can be calculated in all the series, all the three kind of series. The three kind of series are individual series, discrete series, frequency distribution series, or which is also called as continuous series. Today in this class we people are going to discuss how to find out simple arithmetic mean in individual series. Let's see what are the various methods to find out the simple arithmetic mean in case of individual series. There are two methods which are used to find out arithmetic mean in individual series. The first one is the direct method, and the second one is shortcut method. Let's first discuss about the first method, that is direct method. There are certain steps which are to be followed to find out the simple arithmetic mean using direct method in individual series. The first step what we people are supposed to follow is, what we are supposed to do is first step is we are supposed to add all the items given in the series. Then second, how many items are there, that we people must even find out how many items are there, and which will be denoted by n. Added value of all the items is denoted by summation of x. And third, what we people are supposed to do is we are supposed to divide the summation of all the items with the number of items in the series. As we can see here, this is the formula to find out the direct method. This x bar is denoted, x bar is mean. X bar stands for the mean. Summation x stands for the total of all the items in the series, which is going to be divided by the total number of items in the series. This we people are going to discuss with the help of an example. Let's see an example. This is an example. Here in this particular example, this is an individual series, only items we have. What is an example? Example is that these are the 10 items showing the wages of 10 laborers. 10 items are there because wages are of 10 laborers. So what we people are going to do with this example is we are going to find out the arithmetic mean, simple arithmetic mean in individual series using direct method. We have seen what is the formula for direct method. Now people are going to do this particular sum. Let's see how to find out arithmetic mean by using direct method in individual series. Here is the same example. Now what we are supposed to do is we are supposed to find out the mean. The mean can be found out, x bar is equivalent to mean, and what we are supposed to do is we are supposed to find the sigma of all the items. Items here are
120, 150, 180, 200, 250, 300, 220, 350, 370, and 260. And the formula says that to find out arithmetic mean, we have to do the sigma. We have to sum all these items and we are supposed to divide them by the total number of items. Let's see what is total sigma of this, all the numbers. What we are going to do is we are going to add them. If we are going to add them, what we people are going to get is total is 2400. And what is total number of items? Total number of items are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as it is given in the question also, that these are the wages of 10 laborers. And sigma x is 2400. Now what we are going to do, we are going to put up the value in this formula. Sigma x is 2400 and total number of items are 10. So what we people are going to get here is mean is 240. This is average wages of these 10 laborers. So to find out arithmetic mean by using direct method in individual series is very easy. We have to just see how many items are there. Number of items will give us n. And then what we are supposed to do next is we are supposed to sum up the values of all the 10 items. We have here summed up the values and we have got the 2400. What we did is the sum of these items is divided by the total number of items and we will get the arithmetic mean by direct method. Now let's see the second method to find out the arithmetic mean used in individual series. The second method is shortcut method. To find out the arithmetic mean by using shortcut method is also a very easy one. This method is usually used when the number of items in a series are very large. In that case, this method is very much useful to find out the arithmetic mean. What here we people do is, before finding out the actual mean, what we people do is we assume a mean out of the total number of items in the series. We have to assume, हमें assume करना पड़ता है. एक्चुअल मीन निकालने से पहले जो भी आइटम्स हमारे पास हैं हम उनमें से एक नंबर को अपना मीन मान करके चलते हैं, ठीक है, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? वी assumed mean as we give that assumed mean, we denote assumed mean by capital A. और इसे assumed mean को हम यूजुअली कैसे लेते हैं? किसी भी आइटम को वैसे तो हम क्या करते हैं, यूजुअली जो मिडिल वैल्यू होती है हम उसे लेते हैं, पर वो मिडिल वैल्यू कैसे लेनी है हम लोगों ने? जो सीरीज हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज, उसका सबसे छोटा आइटम कौन सा है, मिनिमम वैल्यू कौन से आइटम की है और मैक्सिमम वैल्यू कौन से आइटम की है, हम दोनों आइटम की वैल्यूज को ऐड कर देते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं और जो नंबर आता है हमारा उसे हम एज्यूम करके चलते हैं. और नंबर कैसा होना चाहिए? दैट मस्ट बी अ कंप्लीट नंबर, इट मस्ट नॉट बी इन अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए. हम इसे करके देखेंगे अभी एग्जाम्पल के अंदर. थर्ड स्टेप इज कि deviation of different values from the assumed mean are found and each deviation is written against the concerned value in the series. और हम यहाँ पे करते क्या है, assumed में हमें मिल गई, उसके बाद हमने क्या करना है, जो सीरीज हमें मिली हुई है जिसे हमने x से डिनोट किया है, वो सीरीज को में से हमें जो assumed mean है उसके डिफरेंस फाइंड आउट करता चलना है. हमें x जो हमारा होगा -a करेंगे तो हमें डिविएशन मिल जाएगा कि x की वैल्यू assumed mean से कितना डिविएट कर रही है, कितनी अलग है, कितनी डिफरेंट है, वो डिफरेंस हमने वहां पर फाइंड आउट करना है.
और फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर, जो हमारी डिविएशंस हमारे पास आई, अब हमने उन डिविएशंस को क्या करना है, सम अप करना है। तो वो जो डिविएशंस आएंगी कुछ एज्यूम्ड मीन से कम होंगी, कुछ एज्यूम्ड मीन से ज्यादा होंगी, तो इसकी वजह से हमारे पास जो वैल्यूज मिलेंगे हमें डिविएशन की, सम वैल्यूज विल बी इन नेगेटिव, सम वैल्यूज विल बी पॉजिटिव ऑल्सो। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को एक साथ प्लस कर लेंगे और पॉजिटिव वैल्यूज को एक जगह पर प्लस कर लेंगे, और फिर जो भी ज्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यूज अगर ज्यादा होंगी तो हमारे पास जो डिविएशन आएगा, समेशन आएगा डिविएशंस का, वो नेगेटिव में होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यूज ज्यादा होंगी तो जो हमारे पास समेशन डिविएशंस का होगा वो पॉजिटिव होगा। एंड फिर लास्ट में जो हमारा फॉर्मूला है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डिविएशन डिवाइडेड बाय n। इसके अंदर हम वैल्यूज पुटअप करेंगे और फिर जो अल्टीमेटली हम कैलकुलेट कर पाएंगे, कंप्यूट करेंगे, वो हमारे पास मीन होगा। चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और हमें फिर अच्छी तरह से हम लोग अपना शॉर्टकट मेथड से भी मीन निकाल पाएंगे। शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला सेम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल हमने डायरेक्ट मेथड से यूज किया था। तो यहाँ पे जो वेजेस है हमारी, ये वेजेस जो है ये ही हमारा x है, इसे हम x मान के चल रहे हैं, x वेजेस इज इक्वल टू x। अब हमने करना क्या है यहाँ पर कि जो हम, जैसा भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा पीछे, फॉर्मूला क्या है हमारा शॉर्टकट मेथड से निकालने के लिए, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने सबसे पहले करना क्या है यहाँ पर, हम करेंगे यहाँ पे डिविएशंस फाइंड आउट करेंगे। डिविएशंस फाइंड आउट करने के लिए x तो हमारी वेजेस हैं और हमारे पास यहाँ पर a है जो हमारा एज्यूम्ड मीन है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर एज्यूम्ड मीन हमारा क्या हो ये फाइंड आउट करना है। तो इस सारी की सारी सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी 120 है और सबसे बड़ी वैल्यू जो सी हमारी है वो 370 है। मैं यहाँ पर आपके लिए इसे सर्कल कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो हम करेंगे क्या, हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, यानी कि 120 प्लस 370। तो हमारे पास मिल क्या गया हमें, वी हैव गॉट हेयर 490। अब अगर हम 490 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारे पास क्या आएगा, 245। दिस इज व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू गेट। ठीक है, अब ऐसे में हमारे इससे नियर अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ पर, अगर हम इसमें से डिवाइड करते हैं तो लगभग 245 के करीब हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ऐसे में 245 वैल्यू हमारे इसके अंदर नहीं है, हमारे पास वैल्यू कौन सी है, उसके करीब करीब वैल्यू कौन सी है, 250 है। या तो हम 250 ले सकते हैं या हम 300 वैल्यू ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि 245 तो एग्जैक्ट वैल्यू इसके अंदर है नहीं हमारे पास, तो 245 नहीं है तो इसके अंदर से हम 250 को अपना एज्यूम कर सकते हैं मीन। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, यहाँ पे डिविएशंस निकालनी है। डिविएशन कैसे निकालेंगे, ये जो x वैल्यू हमारे पास है, सपोज यहाँ पे 120 है, इस 120 में से हम माइनस करेंगे 250 को। ठीक है, तो 120 माइनस 250 करेंगे और हमें जो मिलेगा दैट विल बी डिविएशन। चलिए देखते हैं कैसे हम एक एक करके सारों के डिविएशंस फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे वैल्यूज को पुटअप करेंगे अपने इस फॉर्मूला के अंदर। तो फर्स्ट आइटम की हमारी डिविएशन हुई 120 माइनस 250, तो इट विल बी माइनस 130। तो हमारी वैल्यू जो पहली यहाँ पर आई दैट इज 130। यहाँ पे लिखते हैं इसे 130 माइनस 130। कैसे आई माइनस 130, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने किया 120 तो हमारी आइटम है, माइनस हमने क्या किया यहाँ पर 250, तो वैल्यू जो हमें मिल गई दैट इज माइनस 130। इसी तरह से हम यहाँ पर भी फाइंड आउट करेंगे, 150 माइनस 250 कितनी हो जाएगी, माइनस 100।
इसी तरह से यहाँ पे 180 माइनस 250 it will be minus 70. 200 minus 250 it will be minus 50. 250 minus 250 it will be 0. 300 minus 250 it will be positive plus 50. नेक्स्ट है आपका 220 माइनस 220 माइनस 250 तो ये आपका आ जाएगा माइनस 30. 350 माइनस 250 आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि x में से एज्यूम्ड में माइनस करना है. a माइनस एक्स नहीं है, x माइनस a है. तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस 100. देन 370 माइनस 250 तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज प्लस 120. इन द सेम वे यहाँ पर 260 माइनस 250 होगा तो इट विल बी प्लस 10. अब हमने क्या करना है, जितनी भी ये माइनस की वैल्यूज हैं, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, हमने इन सब ये पांचों वैल्यूज को ऐड करना है. तो इन पांचों वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें जो मिलेगा दैट इज माइनस 380. अब हम पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है. हमने इन चारों वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें जो मिला पॉजिटिव का दैट इज 280. तो हमारे पास एक्सेस में क्या है, नेगेटिव वैल्यूज जो है हमारे पास वो ज्यादा है, पॉजिटिव 280 है. तो हमें जो मिल जाएगा दैट इज माइनस 100. हमें मिल गया, क्या मिल गया, माइनस 100 हमारे पास समेशन ऑफ डिविएशन आया. यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं समेशन ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू माइनस 100. अब वैल्यूज पुटअप करें हम यहाँ पर इस फॉर्मूला के अंदर तो हमारे पास क्या है वैल्यूज, अगर हम वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं तो एज्यूम्ड मीन कितना है हमारे पास 250 प्लस अगर हम करें यहाँ पे तो इट इज माइनस 100 डिवाइडेड बाय n कितना था 10 है. इन सबका टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो हमारे पास हैं दैट आर 10. तो इसलिए हमारा n क्या है यहाँ पर 10 है. आपको एग्जाम अपनी नोटबुक्स के अंदर जब भी आप सॉल्व करते हैं आप हमेशा वैल्यूज को लिखें, a इज इक्वल टू 250. आप यहाँ पे मेंशन करें कि समेशन ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू माइनस 100 और जो n है आपके पास दैट इज 10 और उसके बाद वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप करें क्योंकि इन स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं. चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी इससे हम काटते हैं इसे तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 10. तो आपके पास हुआ 250 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इट विल बी माइनस 10. तो आपके पास जो मीन यहाँ पर आया दैट इज 240. आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज कर लें चाहे शॉर्टकट मेथड यूज कर लें, आपका पास जो आंसर अल्टीमेटली आएगा वो लगभग दोनों ही तरीकों से सेम आएगा. तो शॉर्टकट मेथड ये है आपका और इससे पहले हमने बात की थी डायरेक्ट मेथड की. दोनों ही मेथड बड़े आसान हैं. आप मैक्सिमम सम्स सॉल्व करके देखें तो फॉर्मूलाज बड़े जल्दी हमारे ध्यान में बैठ जाते हैं. तो ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं हमारे सिंपल अरिथमेटिक में फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट मेथड हो चाहे शॉर्टकट मेथड हो, तो आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से इन्हें याद कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे. तो आज की क्लास में हमने ये दोनों मेथड डिस्कस किए. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में सिंपल अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू फाइंड आउट सिंपल अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज. तब तक के लिए थैंक यू.